Hello friends, in the previous video lecture we have completed with the discussion of types of errors. So in this video lecture we will discuss one question related to classification of error which can be asked in ICI exam in 5 marks. Friends, look at the question. Classify the following errors under the three categories: errors of principle, errors of omission, and the last one is errors of commission. But friends, before answering to this question, first of all you have to look at the or else you have to observe the previous video lectures in which we have completed with the discussion of errors of principle and errors of omission, commission and compensating errors. Then and then only you are able to solve this question in an easy way. So look at the errors which have been given to you in the question. First error: sale of furniture credited to sales account, purchase worth rupees 4500 from M, not recorded. You have to underline the most important words in the question and you have to identify those words. Purchase worth 4500 from M, underline the word not recorded in subsidiary book. Then third error: credit sale wrongly passed through the purchase book, underline the word it was a credit sale. It was a credit sale which is wrongly passed through the purchase book. Then the fourth error: machinery sold on credit to Mohan, recorded in journal proper, underline the word it is recorded in journal proper but omitted to be posted, but लेजर posting करना omit मतलब भूल गए. And then the last one and fifth error: goods worth rupees 5000 purchased on credit from Ram. We have purchased worth rupees 5000 rupees goods from Ram. It is recorded in the purchase book. We have recorded the same in purchase book, but it is recorded as rupees 500. The purchase amount was rupees 5000, but it is recorded as rupees 500. So you have to observe such kind of words and with the help of which you are able to identify the error. So now let us answer the errors one by one. First error: sale of furniture credited to sales account, underline the word sale of furniture. Friends, because it is a sale of furniture, so it should be treated as a sale of asset and not sale of goods. ये असेट का सेल हुआ है ना कि गुड्स का, तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बिकॉज असेट हमने बेचा है तो असेट हमारे पास से जा रहा है. सो वी हैव टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट as per the rule of real account. So we have to credit or else we should credit furniture account, but instead of crediting furniture account we have credited sales account. You can say it is an error of principle since it is an error occur due to lack of clarity of accounting fundamentals. फ्रेंड्स, यहाँ पर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की क्लैरिटी का लैक हो रहा है क्योंकि आप कुछ भी सेल करो तो वो सेल्स अकाउंट में नहीं जाता है. सेल्स अकाउंट में आप क्या क्रेडिट कर सकते हो, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑल एंड एवरी काइंड ऑफ सेल्स. तो यहाँ पर हमें क्रेडिट करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट ना कि सेल्स अकाउंट बिकॉज इट वॉज सेल ऑफ असेट एंड नॉट सेल ऑफ गुड्स. सो हर एक सेल्स की ट्रीटमेंट एक जैसी होती नहीं है, बट जब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की क्लैरिटी ना हो तब इस प्रकार के एरर्स हो सकते हैं. तो इसी कारण से हम इस एरर्स को यहाँ पर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे. सो फर्स्ट एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. सेकंड एरर, इफ यू रिमेंबर, purchase worth rupees 4500. फ्रेंड्स, इट वाज अ परचेज फ्रॉम एम विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड. मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि आपको अंडरलाइन करना ये वर्ड, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक. सो इट इज़ एन एरर ऑफ ओमिशन. इसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं. मैंने आगे क्लैरिटी भी दी हुई है why it is an error of omission, because since the transaction is completely omitted to be recorded in subsidiary book. क्योंकि ट्रांजेक्शन हम सब्सिडरी बुक में completely record करना ही omit कर गए हैं, भूल गए हैं, and that's why it is an error of omission. I hope you are able to understand. The third error, credit sales. फ्रेंड, it was a credit sales, तो इसको record करना चाहिए सेल्स बुक में, बट इट इज रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक. बाय मिस्टेक हमने दूसरी बुक ले ली हाथ पर और उसमें रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन. इट इज़ एन एरर ऑफ कमीशन. वी कैन नॉट कॉल इट एरर ऑफ प्रिंसिपल. कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मानना है कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने की जगह परचेज बुक में रिकॉर्ड किया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ. बट फ्रेंड्स, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है. आपको यहाँ पर क्लियरली और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और क्लैरिकल में क्या फ़र्क है. फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एरर्स किसको बोलते हैं, जहाँ पर फंडामेंटल्स की क्लैरिटी ना हो. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड करना था सेल्स बुक में बट रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में. फ्रेंड, सेल्स को सेल्स के तरह ही रिकॉर्ड किया जाता है, इतने फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होते हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं. बट यहाँ पर क्या हो गया,
इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने की जगह हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ये कैसी बात हो गई कि टुडे देयर वाज अ लेक्चर ऑफ सुजल सर बट बाय मिस्टेक मैं बुक लेके गया सुदीप सर का। सो इट इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ कमीशन। जल्दबाजी में सुजल सर की बुक की जगह सुदीप सर की बुक आ गई और उसमें मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सो इट इज नॉट एन एरर बिकॉज ऑफ माय प्रिंसिपल्स आर रॉन्ग, इट इज जस्ट अ क्लैरिकल एरर जो जल्दबाजी में हो गया है। सो दैट्स व्हाई we can call it error of commission and not error of principal. So the third error is error of commission. Fourth error, friends, machinery sold on credit to Mohan, हमने असेट सेल किया हुआ है। इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, वेरी गुड, हमने इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड भी कर दिया। फ्रेंड्स इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ सेल्स ऑफ गुड्स, इट इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, इट इज सेल ऑफ असेट। तो इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये सही किया इन लोगों ने, इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट अंडरलाइन द वर्ड बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, बट हम लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। सो आई कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन सिंस द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो चुका है बट लेजर पोस्टिंग करना बाकी रह गया। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। एंड लास्ट एरर, गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, हमने 5,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए राम के पास से। सो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए विथ ₹5,000 बट हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया विथ ₹500। सो इट इज़ एन एरर ऑफ कमीशन एंड नॉट प्रिंसिपल। फ्रेंड्स इसको हम एरर ऑफ कमीशन ही बोलेंगे क्योंकि ये जल्दबाजी में हुई गलती है। अब सीधी बात है यहाँ पर 5,000 को कैसे लिखना, उतने प्रिंसिपल तो हमारे क्लियर होते ही है, ऐसा मानकर हम चलते हैं। इट इज़ एन फंडामेंटल एजम्पशन, it is a fundamental assumption that how to note down 5,000 rupees that we know in advance, means how to note down the figures, that much clarity we have, that what we are assuming, it is a fundamental assumption. So यहाँ पर जल्दबाजी में क्या होगा, ड्यू टू नेग्लिजेंस the transaction should have been recorded with ₹5,000 but by mistake it is recorded as ₹500 and hence this is an example of error of commission because the amount is wrong. I hope friends you are able to understand this question in a good way. So with this I am ending this session, and such kind of question they are going to ask you in 5 marks. So you are bit lucky if such kind of question is going to be asked in the exam. Thank you friends, और वीडियोस देखते रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए।